22 participants have joined the lecture. Usually the strength is, I think, 23, 27, 26, 27 is the strength. This is the first question. Sir, acceleration is 4 meter per second. Acceleration is 4 meter per second. Okay. And what is the tension in the thread? 16 Newton. 16 Newton. Tension in the thread is 16 Newton. Okay. We'll see. I have received one answer. Is this question that difficult or what? So only one student have answered. Sir, acceleration is 4 meter per second square and tension is 16. Tension is 16. Okay, we'll see. The answer is same, sir. Same answer. Okay, very nice. Uh, it's an order. Always, it's an order. I'm not that giving that order, but it's an order from high authority that you have to make your video panel on. So please, if it's possible, then please make your video panel on, because some of the parents are complaining that what the students are doing, they are sitting inside their what they're locking the room and they're not attending the classes. तो या तो देखो, या तो you can respond to the questions. That is the solution. If you don't want to show me your faces, then you can respond to the solution, or you can make the video panel on. Sir, I have a network problem, so if I will turn on my video, then I will disconnect. Okay, nahi, Manas, देखो, I am confident from your side because you keep on answering the question. So that is not a problem from some of the students. I have recognized that they answer the question. So those students who regularly answer the question, so for them it's not a problem. It's their wish. They want to make the video panel on or not. It's their wish. But some of the students, एक तो वो लोग participate नहीं करते lecture में, and their video panel is also not on, so it's very difficult to identify whether they are studying or not. I don't want to name those students, but please, everyone has to make their video panel on. Sebabrat, Santoshi, Akash, Shashwati, Soham, Saubhagya, Shubhra Jyoti, Malini, Pruthi, Shubhendu. Chalo. A few students have made their video panel on, but still some of you are hiding with behind the cameras. Pata nahi, I don't know what is the scene. Chalo. Sahil Malik, Agnik Prasad. Sahil, have you got the answer? Sahil, this is the reason. एक तो video panel is also not on and you are not responding also. From where the hell that I'll know that you are in the class or you're out of the class? Aditya Biswal. Yes, sir, I'm doing, sir. Okay. So have you got the answer, Aditya? No, sir, I'm just doing, sir. Just a second. Okay. Shubhendu. Sir, doing. Okay. Chalo, I'll help. देखो, if this is the question and we want to calculate this question, so always try to, मतलब, if question is based on Newton laws of motion, then few steps that you have to remember. Starting में कुछ steps होंगे जो आपको remember करना पड़ेगा. सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है? आपको identify करना पड़ता है system. Identification of system. First step that you have to do is identification of system. अब what is this identification of system? मतलब what is this system? तो
किसी भी क्वेश्चन में सिस्टम मीन्स पार्टिकल और अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल विच आर हैविंग सेम एक्सेलरेशन. पार्टिकल वो सिस्टम में एक पार्टिकल हो सकता है, 10 पार्टिकल हो सकते हैं, करोड़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो what is the criteria for particles to be included in a particular type of system? That the acceleration of the particle must be same. So if this 4 kg block and 6 kg block is being tied to a string, अब ये string की ना कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी. String that we generally consider in our syllabus is string is inextensible. ये जो स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग कभी ब्रेक नहीं करता, वो अनब्रेकेबल है. जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें जो स्ट्रिंग होगा वो अनब्रेकेबल है, वो टूटेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द स्ट्रिंग कैन ब्रेक, then you have to assume that the string is unbreakable. Also the ideal string is massless. This ideal string is massless. So these are the hidden attributes of the string that is not mentioned in the question generally. So you have to consider these hidden attributes. ठीक है कि ये given attributes थे, ये given है question. Okay. अब whenever there is a tendency of elongation in the string, मान लो एक thread है, thread इस तरह का रखा हुआ है, अभी thread में कोई elongation की tendency नहीं, तो if there is no tendency of elongation in the thread, then there is no force acting within the thread. लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, थ्रेड में फोर्स अप्लाई करोगे, सपोज आपने फोर्स इधर भी अप्लाई किया, आपने फोर्स इधर भी अप्लाई किया, तो क्या होता है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड में इलोंगेशन की टेंडेंसी आ जाती है. थ्रेड जो होता है वो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये कोशिश कर रहे हैं कि थ्रेड को इलोंगेट करे. तो जैसे ही आप थ्रेड को इलोंगेट करने की कोशिश करोगे, थ्रेड क्या करता है, थ्रेड को इलोंगेशन नहीं पसंद है, तो थ्रेड क्या करेगा, थ्रेड विल डेवलप एन इंटरनल फोर्स विच विल रेजिस्ट दिस इलोंगेशन. तो वो जो इंटरनल फोर्स थ्रेड जो डेवलप करता है, दैट इंटरनल फोर्स इज नोन एज द टेंशन इन द थ्रेड. अब व्हाट इज दिस टेंशन, टेंशन फोर्स. तो टेंशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ इस एक्सटेंशन वाले फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, दिस इंटरनल फोर्स इज ओनली नोन एज टेंशन. टेंशन के बारे में एक और बात जो आपको याद रखना है कि टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो इफ दिस इज 4 kg block, so tension on this thread will act in this direction, tension in this thread will act in this direction. Ab since the thread is massless, so tension will be throughout, the tension in the thread will be same throughout. So whatever will be the magnitude of tension at this position, that the same magnitude will be at this position also. So what will be the change? The change will be in the direction. Always remember, tension will always act away from the object. So if this is a 4 kg object, so tension will be acting in this direction. For the 6 kg object, the tension will be acting in this direction. Okay. So identification of system means you have to identify what many number of particles are there in your system. So when two blocks are tied to a string, then these two blocks will move with the same acceleration. अगर ये स्ट्रिंग को टॉट होना है, अगर ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वॉट एवर मे बी द एक्सेलरेशन ऑफ द 6 kg पार्टिकल, द सेम एक्सेलरेशन शुड बी ऑफ दिस 4 kg पार्टिकल आल्सो. तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अगर सेम है तो हमने दोनों को क्या कर लिया, सिस्टम मान लिया. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोर्सेस आइडेंटिफाई करना है कि वॉट एवर व्हाट मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग टू योर सिस्टम. तो अगर आप फोर्सेस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे, मतलब यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सबको पता है ना व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. So I'll start with this 4 kg block. So in this 4 kg block, what are the forces that is acting? तो in this 4 kg block, सबसे पहला फोर्स जो आप इसको दिखाओगे, that will be the weight of this object. So the weight of this object is 40 Newton, that will be acting in the downward direction. Similarly, if this 4 kg object is kept on the surface, so this surface will apply a normal reaction in the upward direction. So this surface is applying a normal reaction. Suppose this is N1 in the upward direction. And also this thread is applying a force on this 4 kg block in the forward direction. So 3 forces are acting on this 4 kg block.
Similarly, if you draw the forces that are being acting on the 6 kg block, so first force will be the weight of this object 60. The surface will apply a normal reaction N2 in the upward direction. This thread is pulling the 6 kg block in the backward direction, and one force is this 50 Newton force, that is the applied force. The external agent that is applying this force. Second step was identification of forces. Second step that you have to do is identification of forces. Third step that you will be doing is, once you have identified the forces, third step you have to do, you have to mark one of the axis as x-axis and the another axis as y-axis. Generally, third step is selection of axis. Selection of axis. मैं ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन में ऐसा बोर करने वाला हूँ, ऐसा नहीं करूंगा. तो सिलेक्शन ऑफ एक्सिस, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस में आप क्या करना, जिस डायरेक्शन में, ये एचसी वर्मा हैज अ लाइन रिटन ऑन इट that generally the direction in which the particle is moving is taken as x-axis. So what we'll be doing, we'll be assuming this direction. Since force is applied on this direction, so we'll be assuming this direction as x-axis and the perpendicular to this direction will be taken as y-axis. This is the second step. Third step that you have to perform is, अगर कोई ऐसा फोर्स है जो एक्सिस के अलोंग नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो N1 40, N2 60 ये सारे एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है. टेंशन x एक्सिस के अलोंग था, तो इनको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा. किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, दिस 50 न्यूटन फोर्स. अगर आप इस 50 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो ये दिस वाज आवर 50 न्यूटन फोर्स. अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो 50 न्यूटन फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसके साथ एंगल बनता है, वहां पे कॉस कंपोनेंट आता है, तो दिस कंपोनेंट विल बिकम 50 cos 37. एंड जो परपेंडिकुलर होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता, वहां पे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 50 sin 37. यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. अब अगर आप देखोगे ना तो y डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल अपने वैल्यू को बैलेंस कर लेता है. तो y डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है. इसमें भी अगर इसमें अगर आप y डायरेक्शन में फोर्स लिखते फॉर 4 kg ब्लॉक, तो आप ऐसा बोल देते कि n1 का वैल्यू 40 के इक्वल है. अब अगर y डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, मतलब y के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला. उसी तरह अगर आप इस 6 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो for this 6 kg block, N2 was acting in the upward direction, and the component of 50 sin 37, this component 50 sin 37 is also acting in the upward direction. So 50 sin 37 is equal to weight of this object. So after solving this, you'll be getting the value of N2 as 60 minus 50 sin 37. I hope all of you know the value of this sin 37 value. अगर नहीं पता है तो ये ट्रायंगल याद रखेंगे, 37 के सामने 3, ये 4 और ये 5. sin 37 is 3/5. तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3/5, तो ये 1 होगा, ये 10 होगा, तो 60 minus 30, तो N2 एक्टिंग इज 30 न्यूटन. अब y डायरेक्शन में इसमें भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, y डायरेक्शन में इसमें भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया था, जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना नीचे की तरफ फोर्स है, जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है, इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया. x डायरेक्शन में अगर देखोगे तो फॉर दिस 6 kg पार्टिकल के लिए क्या हो रहा है, 50 cos 37 जो फोर्स है वो उसको आगे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो टेंशन है वो रोकने की कोशिश कर रहा है. तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करोगे ऑन दिस 6 kg ब्लॉक, तो नेट फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा, 50 cos 37 चाहता है कि जो 6 kg का ब्लॉक है वो आगे चले, लेकिन जो टेंशन है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. अब फिर भी ये जो नेट फोर्स है उसको न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. मैंने अभी बताया था कि दोनों अगर थ्रेड से टाइड है, मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा अगर, तो नेट फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आप पहला इक्वेशन कैसा बना सकते हो फॉर दिस 6 kg ऑब्जेक्ट, ये जो 6 kg ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो पहला इक्वेशन बन के आ रहा है 50 cos 37 हो जाएगा 4/5 माइनस टेंशन is equal to mass of the object was 6 and let the object is moving with an acceleration a. Is it clear to everyone? This first equation, is it Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब
from the diagram from this 4 kg block, अगर आप देखोगे तो 4 kg block में only unbalanced force that is acting is the tension. This tension is only making this 4 kg block drag in the forward direction. So if this tension is the unbalanced force, then tension unbalanced force can be written as mass of this 4 kg object into acceleration of that 4 kg object. So we can replace this tension from the second particle. Tension is equal to net force, and net force is equal to mass of the object into acceleration that has been produced in that object. So this is equation number 2. So from first equation I'm getting 50 minus 4 by 5 equals to t into 6a, and from second equation I'm getting this value. So if I'll replace this tension and put the value of tension from equation 2 to equation 1, then I'll be getting this 40 minus 4a is equal to 6 times of a. That implies the value of acceleration will be 10 meter per second square. अगर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन एज 40 into 10, तो 40 Newton. The value of acceleration will be 40 Newton. So these are the two answers. Is it clear to everyone? Yes. Has Yes, everyone sir. understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, आप ना ये जो क्वेश्चन था इसको एक बहुत ही शॉर्टकट मतलब एक सिंपल वे से भी आप सॉल्व कर सकते हो. अब तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है. आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा. क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना होता है तो आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होता है. ये आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये बोला होगा कि किसी भी सिस्टम को अगर डिस्प्लेस करना है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए. इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं, इंटरनल फोर्सेस आर नॉट केपेबल टू शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. तो सपोज जो क्वेश्चन था वो ऐसा था. अभी मैंने आपको बताया ये जो टेंशन है, टेंशन जो था, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स. अगर मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम देखूं, मान लो 4 kg और 6 kg वाले ऑब्जेक्ट को एज अ सिस्टम देखूं. सिस्टम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है और मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन होना नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्सेस जो है वो बैलेंस आउट हो जा रहे हैं. तो अगर सिचुएशन ऐसा है 4 kg 6 kg और इसमें जो अनबैलेंस फोर्स आपने अप्लाई किया वो अनबैलेंस फोर्स कितना था? 50 न्यूटन का. और इस 50 न्यूटन का भी जो एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वही इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम में, एक मिनट, हाँ, पूरा सिस्टम, अगर ये पूरा सिस्टम है तो पूरे सिस्टम में जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है वो 50 का कंपोनेंट होगा. 50 का यहाँ पर जो कंपोनेंट आया था 50 cos 37. अब 50 cos 37 कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा क्या? सॉरी 40 आ जाएगा. इधर 40 न्यूटन का फोर्स आ रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 kg और 6 kg जो टेंशन था वो तो इंटरनल फोर्स था, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरे सिस्टम को आगे ड्रैग कौन कर रहा है? 40 न्यूटन का फोर्स. तो आप ये लिख सकते हो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा था वो 40 का था. मास ऑफ द सिस्टम वाज 10 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली एज 4. जैसे ही आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मिल गया 4, आप क्या करना, किसी एक पार्टिकल को एनालाइज कर लेना. इस वाले पार्टिकल को एनालाइज करना. ये 4 kg वाले पार्टिकल को अगर आगे कोई लेके जा सकता है तो वो यहाँ पे जो एक्टिंग टेंशन है वही इसको आगे लेके जा सकता है. तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर फॉर दिस 4 kg पार्टिकल, तो द वैल्यू ऑफ टेंशन, जो टेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 है और इसका मास 4. ये टेंशन कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? प्रीवियस पेज में कितना आया था? 4 into a, sorry, the value of acceleration is 10 meter per second square. यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक किया क्या? सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना उसमें भी? 6 + 4 10 होगा. एक मिनट प्रीवियस पेज. सॉरी, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा तो टेंशन हो जाएगा 4 into 4. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, सो द वैल्यू ऑफ टेंशन दैट विल बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 16 न्यूटन. अब आप चाहो तो डायरेक्टली
इस वाले में आप फाइंड आउट कर सकते हो, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। एक बार सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया तो 4 into 4 अगर आप कर दोगे तो आपको ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 16 न्यूटन का। तो दोनों तरीका समझ में आया क्या? ये जो डायरेक्ट Yes, मेथड है जिसमें sir. कोई Yes, इंटरनल फोर्स कंसीडर नहीं किया, और ये जो टेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. मान लो मैं थोड़ा तूफानी होने का कोशिश करूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दूं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है। एंड सपोज फिर से यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दो 50 न्यूटन का। ये 37 है, फिर से ये 37 डिग्री है। ये ले लेते हैं 4 kg, 5 kg और 4 + 5 और ये 1 kg, ठीक है। 4 kg, 5 kg, 1 kg, और यहाँ पर भी फोर्स लगा दिया। मतलब मुझे जरा सा भी चैन नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? मान लो मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। अब यहाँ पे जो थ्रेड है उसमें टेंशन कुछ T1 है, यहाँ पे जो थ्रेड है उसमें टेंशन कुछ T2 है। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, मतलब विद इन सेकेंड्स। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम कंसीडर करके एक बार सॉल्व कर लेते हैं, वो तरीका अच्छा लग रहा है, वैसे सॉल्व कर लो। आप इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहते हो तो इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि दोनों तरीके से सॉल्व करना चाहिए या आंसर आ जाए। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको लगता है कि आंसर आ जाएगा। और जिस किसी का भी आंसर आ जाए वो मुझे बता देगा कि हाँ आंसर आ गया है। "32 participants have joined. प्रियांशु शेखर, Yes, ma'am. But yes, sir. प्रियांशु आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है प्रियांशु। आदित्य बिस्वाल, आदित्य बिस्वाल, आदित्य, आदित्य आप मीटिंग में हो? नहीं, आदित्य इज नॉट इन द मीटिंग। Sir, 11/16. 11/16, 11:16 आंसर आ रहा है क्या? टेंशन का रेशियो फाइंड करना है, T1:T2। संस्कार मिश्रा, यस सर। संस्कार आपने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले वाला? यस सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सर सॉल्व मेरा 3:2 आ रहा है। 3:2 आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ 3:2 एक आंसर आ रहा है मेरे पास। संस्कार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या संस्कार? सर 1 मिनट सर। ओके, ठीक है। देवराज इतना अंधेरा क्यों है? कैमरे ऐसे। अच्छा, कैमरा ऐसे, कोई बात नहीं। देवराज आंसर आ गया क्या देवराज? ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। आबिदा, आबिदा फैजल। यस सर। हाँ आबिदा, आपने सॉल्व कर लिया? सर 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। सेबव्रत, सेबव्रत, पता नहीं सेबव्रत को क्या हो गया है। ये जब S1 या S2 में था तो ये पढ़ाई करता था, पता नहीं क्या हो गया इसको। संतोषी, यस सर। संतोषी आंसर आ गया? कर रही। ओके, ठीक है संतोषी।
श्रेया सॉरी सर, वो 11:16 होगा। वो 11 को मैं सर गलती मेरा से भी 12 वही आ जैसे रहा है, लिखा 11 हूँ। Sir, 11:16, sir. 11:16 आ रहा है। ओके ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोगों को ट्राई करने देते हैं। 11:16। ओके, बहुत लोग आंसर आ रहा है 11:16। चेक करते हैं 11:16। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तुम अगर मेरे को बोलोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो मैं डायरेक्टली जो सिस्टम वाला मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे थ्रेड अलग है, यहाँ पे थ्रेड अलग है, फिर भी जितने एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। क्यों ऐसा मूव करेगा? बिकॉज दे आर बीइंग टाइड टू अ थ्रेड। अगर ये लोग थ्रेड से टाइड है और ये थ्रेड का लेंथ अगर चेंज नहीं हो सकता, तो जितना एक्सेलरेशन इसको मिलना है उतना ही एक्सेलरेशन इसको ही मिलना है, उतना ही एक्सेलरेशन इसको ही मिलना है। तो मैं तीनों को सिस्टम मान लेता हूँ और तीनों सिस्टम पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है 50 cos 37 वो 40 न्यूटन का है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 20 का। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका मास है 10 kg का, और इस 10 kg के मास पे इधर फोर्स अप्लाई किया गया था 40 न्यूटन का, और इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का वैल्यू जो डायरेक्टली लिखा जा सकता है वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. नो सर। ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, एंड सो ऑन। अच्छा, मान लो मुझे T1 कैलकुलेट करना है, तो मैं T1 के लिए ना इसको पिक करता हूँ, इस वाले मास को। मुझे T1 कैलकुलेट करना है तो मैं T1 के कैलकुलेशन के लिए इस वाले मास को पिक करता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो दिस 1 kg ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेफिनेटली T1 का वैल्यू 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। और कितना ज्यादा होगा? तो नेट फोर्स आप कैसे लिखोगे? नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास है 1 और इसका एक्सेलरेशन है 2, तो नेट फोर्स को मैंने लिख दिया T1 माइनस 20 नेट फोर्स था, तो T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। तो द वैल्यू ऑफ T1 दैट विल बी रिसीविंग विल बी 22 न्यूटन। हाँ या ना? कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. अब नो आप सर। T2 का वैल्यू इस वाले मास को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस वाले मास को भी यूज करके 4 kg वाले मास को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों में से किसी को भी यूज कर लो। मान लो मैं इसको यूज करता हूँ 5 kg वाले ब्लॉक को, तो इसमें क्या हो रहा है? T2 इस वाले ब्लॉक को इधर ड्रैग कर रहा है, T1 आगे जाने से रोक रहा है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 5 kg ब्लॉक? T2 चाहता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चले, लेकिन T1 जो है वो उसको रोक रहा है। तो दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 5 इनटू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 2। अच्छा, अब T1 का वैल्यू वी हैव सॉल्व, द वैल्यू ऑफ T1 वाज 22, तो T2 minus 22 is equal to 10. On simplifying this, we'll be getting the value of T2 as 32 Newton. अब in order to calculate the ratio, the value of T1 is 22 and the value of T2 is 32. So the ratio of this will be 11:16. So this will be your correct answer. I think most of them have got this answer only. सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। आसान है ना बहुत? Yes, sir. यस सर। Okay. Yes. Okay. Suppose the next question is, ये ग्राउंड है और ग्राउंड में ना एक बहुत ही मोटी सी रोप रखी हुई है। ठीक है, ग्राउंड में क्या है? एक बहुत ही मोटी सी रोप रखी हुई है, मतलब रस्सी नहीं है, रस्सा है, रस्सा। एक बहुत ही मोटी सी रोप रखी हुई है इस तरह से। अब मोटी सी रोप होने का मतलब क्या है? कि दिस रोप हैज अ मास। ये बोला गया है कि ये जो रोप है, the mass of this rope is m, which is evenly distributed throughout, and the length is l. ठीक है, a force is being applied T. A force T is being applied to one of its end. Suppose this was end A, this was end B. Ab in what are they asking in the question? Find the tension. Find the tension. Find the tension at A.
फाइंड द टेंशन एट ए कॉमा सी विल बी द मिड पॉइंट, ठीक है, C will be the midpoint of this thread A comma C comma B, and tension as a function of X, where X is the length from A. X is the length from A. ये क्वेश्चन है। एक मोटा सा रोप है, इस बार जो रोप है, अब मोटा सा रोप बोलने का मतलब है इस बार जो रोप है वो मासलेस नहीं है, उसका मास है m and that mass is evenly distributed throughout the length of this rope. If a force of T is being acting on point A, then what will be the value of tension at point A, point C, point B, and tension at as a function of X? What is this X? So this X is what? Separation from A. ठीक है, यहां से लेके यहां तक का कोई भी डिस्टेंस होगा x। कोशिश करते हैं ए बी और सी, मतलब ए सी बी में कैलकुलेट करना तो फिर भी आई थिंक इट्स इजी। एक्स वाला कैलकुलेट करो या देखो क्या हो रहा है। सर आपने ये जो m और l लिखा ये क्या है? m is the mass of this rope and l is the length of the rope from A to B. A to B the length is l and m is the mass. किसी का आंसर आया? ये बहुत आसान है। A, C and B, the value of tension at point A, point C, point B, सेम होगा क्या? हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा क्या? अभी मैंने बोला था कि हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, लेकिन वो मासलेस स्ट्रिंग में होता है। दिस स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। यहाँ पर स्ट्रिंग का मास है, तो if the string is having some mass, then definitely the tension won't be equal at every position of the string. मैं बता दूं क्या? 1 second, sir. 1 second, ओके। नहीं तो फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप यहाँ पर देखो, ए पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, पूरे सिस्टम का अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, अब हर एक पार्टिकल अगर बाउंडेड है तो हर एक पार्टिकल एक जैसा ही मूव करेगा। पूरे सिस्टम पे जो अनबैलेंस फोर्स है वो टी का है एंड मास ऑफ द टोटल सिस्टम इज m। अब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमारे पास कितना आ रहा है, t डिवाइडेड बाई m। अब अगर पॉइंट ए पर चेक करोगे, पॉइंट ए पर जो टेंशन है, पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सिस्टम को ड्रैग कर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एट पॉइंट ए। तो आप तो सीधा सीधा ये बोल सकते हो ना कि टेंशन एट पॉइंट ए जो होगा वो इक्वल टू टी होगा। या अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं क्यों मान लूं, तो आप ये लिख दो, टेंशन एट पॉइंट ए जो है वो पूरे सिस्टम को आगे लेके जा रहा है। तो पूरे सिस्टम को आगे लेके जा रहा है मतलब पूरे एम मास को आगे कौन लेके जा रहा है, पूरे एम मास को ये टेंशन एट ए जो है वो आगे लेके जा रहा है।
तो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जब आप करोगे तो m will get cancelled from this m, तो टेंशन एट पॉइंट A will be equal to कैपिटल T. yes or no? ये समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, फिर मान लो मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है पॉइंट सी पर, तो ये पॉइंट सी पर जो टेंशन है वो सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ मास को आगे ड्रैग करेगा. पॉइंट सी पर जो टेंशन है वो क्या करेगा, इतने पोर्शन ऑफ मास को आगे ड्रैग कर रहा है. तो अगर इतने पोर्शन ऑफ मास को आगे ड्रैग कराना है तो कितना मास है, m/2 का मास है, which has to be moved with an acceleration of t/m. तो टेंशन एट पॉइंट सी जो होना चाहिए वो होना चाहिए m/2 into acceleration of the system was t divided by m. तो m से m अगर आप कैंसिल करोगे तो टेंशन एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, टेंशन एट पॉइंट सी हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 2. और ये लॉजिकल भी है, अगर तुम देखोगे तो टेंशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो हाफ वे डाउन में टेंशन क्या होना चाहिए, जितना स्टार्टिंग में था उसका आधा हो जाएगा. उसी तरह टेंशन एट पॉइंट बी कैलकुलेट करोगे तो बी के पीछे कोई मास तो है नहीं, तो बी को किसी को ड्रैग करना नहीं है, तो बी को अगर किसी को ड्रैग करना नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा. और ये लॉजिकल भी है, अगर यहाँ पर टेंशन टी है और वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे वो टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये तीन आंसर तो बहुत ही इजी थे, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट सी एंड टेंशन एट पॉइंट बी. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में अभी तक? No, sir. No, sir. अब No, sir. इम्पोर्टेंट होता है टू कैलकुलेट टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x. मान लो मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, यहां से किसी x दूरी पर कोई पॉइंट है, पॉइंट A से x सेपरेशन पर कोई पॉइंट था, मान लो पॉइंट P. इस पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है. अब अगर आप देखोगे तो देखो ये अगर पॉइंट P है, अगर यहां से यहाँ का लेंथ x हो गया तो यहां से यहाँ का जो लेंथ है उसको L माइनस x लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ओके. अब Yes, sir. this P2B सिस्टम, दिस P2B सिस्टम या P2B जो पार्टिकल है उसको t/m एक्सेलरेशन से आगे मूव करना है. कौन मूव कराएगा इसको आगे? तो यहाँ पे जो टेंशन एक्ट करेगा, P पॉइंट पे जो टेंशन होगा TP, P पॉइंट पर जो टेंशन TP है, that will only make this PB portion move in the forward direction. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं क्या बोलूंगा कि सॉरी, टेंशन एट पॉइंट P पे जो टेंशन होता that is only responsible to make this portion m mass of PB into acceleration t/m. ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. What we have to do, we have to find mass of PB. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ पीबी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अगर आप देखोगे तो जो L लेंथ ऑफ थ्रेड था, पूरे लेंथ में M मास वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मैं 1 यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड का मास अगर लिखता तो मास पर यूनिट लेंथ ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर Yes. L लेंथ Yes. में पूरा Yes. M मास डिस्ट्रीब्यूटेड था तो एक यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो M/L हो जाएगा. इसका मतलब PB लेंथ का जो मास है, PB लेंथ का जो मास है उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दिस PB इज व्हाट, L माइनस x. तो अगर 1 यूनिट लेंथ का मास इज M/L तो L माइनस x यूनिट का जो मास होगा that will be M/L times of L minus x. So in place of MPB I'll be replacing it with M/L into L minus x. So on substituting the value of mass in this equation, the value of tension at point P that you'll be getting is M/L into L minus x T divided by M. So this is the general formula for tension, how the value of tension is decreasing. So this is the general formula. अब अगर आप चाहोगे कि नहीं सर मेरे को इस आंसर पे विश्वास नहीं है, मेरे को चेक करना है कि आंसर सही है गलत है, आप x का अलग अलग वैल्यू पुट कर दो. मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो टेंशन एट पॉइंट A के बारे में बात कर रहे हैं क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना? Yes, sir. तो No, अगर sir. आप इस इक्वेशन में x 0 पुट कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, L माइनस x में सिर्फ L बचेगा, तो दिस L will cancel out with this L, this M will cancel out from this M. तो टेंशन एट पॉइंट A का वैल्यू T के इक्वल आ जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मान लो एक और पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू L. अगर x इज इक्वल टू L के लिए चेक करें मतलब वी आर कैलकुलेटिंग टेंशन एट पॉइंट B.
तो L x इज इक्वल टू L पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो टेंशन एट पॉइंट भी 0 आ जाएगा. अब मैंने दो एंड पॉइंट्स पे रिजल्ट चेक कर लिया, रिजल्ट मैच कर रहा है, इसका मतलब जो भी मैंने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है. तो हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास सर अगर ये क्वेश्चन में हाँ अगर ये क्वेश्चन में मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो कैसे सॉल्व तो फिर मास इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तब भी सॉल्व हो जाएगा. वो वेरिएबल मास होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे. वेरिएबल मास में ना जैसे अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. फिर जैसे अभी ये बोलते हैं ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तब लिखते हैं जब मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt. तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा. या ऐसा समझ लो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो एक फंक्शन होगा. मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर. ठीक है, एक फंक्शन होगा, बस कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, करना यही होगा. बस मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना सर, एक वेरिएबल मास डेंसिटी वाला क्वेश्चन कराने को, मैं करा दूंगा. चलो फिर अभी मैं एंड करता हूँ. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.